Hello students, let us carry on with our discussion of chemical thermodynamics. In the last lecture, we studied about the basic concepts like system, surrounding, and we also studied about the types of the properties, that is extensive properties, intensive properties. Today, let us carry on with our discussion. Let us try to understand the state function. We have already discussed it. I would like to just revise it. State functions are very important to define the state of the system. What it means, suppose we have a gas in a container. Suppose this is a container and this is fitted with this piston and there is gas present in this. Now if we want to define how exactly the gas is, then we will have to state what is the pressure of the gas, what is the temperature, what is the volume. So if we can state the temperature, pressure, volume and the number of the moles, then we can define the entire state of the system. That is why these things, pressure, temperature, volume, number of mole, these are called as state variables or state functions. And state functions depend only upon the state of the system. They do not depend upon the path by which that state has been reached. इसका मतलब क्या है कि अभी अगर ये गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो हम लोगों को सिर्फ उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये इसमें इंटरेस्ट है, ना कि ये प्रेशर हुआ कैसे. मतलब अगर इसके पहले इसका प्रेशर P1 है तो इसके बाद ये प्रेशर P, अभी इसका प्रेशर P है, दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट टू अस. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई P1 से मैंने P2 किया था, फिर P3 किया था, इसके बाद में P किया था. ऑल दिस थिंग्स आर इमटेरियल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेट फंक्शंस. So state functions depend only upon the state of the system and not upon the path that was taken to reach that state. इसके विपरीत जो प्रॉपर्टीज होती है, जो फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शंस. सो पाथ फंक्शन विल डिपेंड अपॉन द पाथ दैट इज फॉलोड. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को A to B यहां जाना है तो मैं यहां से यहां चला जा सकता हूं सीधा A से B, या तो फिर आई कैन गो फ्रॉम हियर, आई कैन गो फ्रॉम A to C एंड देन C to B. The two things will be different. So if I am talking about the work that is done, it will be different in both the cases. Here the work done will be comparatively lesser, and in this case work done will be more. So work is a path function. Okay, it is not a state function. It depends upon what path was taken to reach that state. Therefore it is a path function. अब thermodynamics में we talk about state of the system and changes that take place in the state of the system. अब किसी भी सिस्टम की स्टेट को अगर चेंज करना है तो जो कुछ भी हम लोग करेंगे, जो कुछ भी चेंजेस, फिजिकल या केमिकल चेंजेस हम लोग करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस. सो प्रोसेस इज फिजिकल और केमिकल चेंज दैट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का स्टेट चेंज करते समय जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम लोग परफॉर्म करेंगे, इस सिस्टम के ऊपर ब्रिंग अबाउट करेंगे, दोज थिंग्स, दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज प्रोसेस. So process is a physical or chemical change that takes place when the state of the system changes. कब हम लोग बोलेंगे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम हैज बीन चेंज्ड? स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो गया हम तभी बोलेंगे जब स्टेट फंक्शंस चेंज होते हैं. तो पहले से अगर हमारे पास गैस है
इसके ये स्टेट फंक्शंस का वैल्यू है P1 V1 T1, सपोज n नंबर ऑफ मोल्स है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम लोग फिर ये गैस के स्टेट फंक्शंस कितने हैं देखते हैं। सपोज ये अभी भी P1 V1 T1 है, नंबर ऑफ द गैस मोल्स इज ऑफ कोर्स सेम, तो उस केस में नथिंग हैज चेंज्ड, देयरफॉर वी से दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम हैज नॉट चेंज्ड। बट अगर प्रेशर P1 था और P2 हो गया अभी, in this case the state functions are different and therefore we say that the state of the system has changed। तो ये चेंज करने के लिए हम जो कुछ भी करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस। अगर स्टेट फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं विद टाइम, the state functions are not undergoing change, then we say that the system is in thermodynamic equilibrium। so thermodynamic equilibrium कब बोलेंगे हम लोग? thermodynamic equilibrium if the state functions do not change with time, then we say that the system is in thermodynamic equilibrium। so अब हम लोग ये समझ गए हैं कि if the state of the system has to change, then we will have to carry out some process on it। now let us see what are the different processes that we have to carry out। remember one thing कि सिस्टम का स्टेट अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, सिस्टम स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, देन उसके लिए जो भी प्रोसेस हम लोगों को लगेगा, जरूरी नहीं कि वो ये यूनिक प्रोसेस ही हो, मतलब एक ही प्रोसेस है जिससे ये हम लोग चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये जरूरी नहीं है। देयर कैन बी डिफरेंट वेज, देयर कैन बी डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस। ये यूजुअली ऐसा है। हाँ, कुछ प्रोसेसेस जरूर ऐसी है जो यूनिक है। ओके, जैसे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज यूनिक, एक ही प्रोसेस होगी, उसका दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। सो यूजुअली द प्रोसेस that is required or that is involved during the change of state of the system is not unique. There can be different ways in which we can bring about the same change of state। मतलब सिस्टम अगर स्टेट A से स्टेट B की तरफ चेंज होती है तो जरूरी नहीं कि A to B यही पाथ वो फॉलो करे। It can change from A to C and then it can go to C to B. This is also possible. So there is no unique process. There need not be a unique process when the state of the system changes from some initial state to the final state. So now let us try to understand what are the different types of processes. This is very important discussion. ये processes समझना बहुत जरूरी है। This is very easy. I hope you are understanding everything because I am trying to make it as simple as possible. Processes क्या है? First one is isothermal. You can easily understand this thing. See, iso is same, constant. Thermal is something which is associated with the temperature. So if during a process the temperature of the system does not change or it remains constant, then we say that the process that is being carried out is isothermal process. मतलब क्या है? अगर यहाँ पे गैस है हमारे पास, इस पे कुछ तो हम लोग प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। पहले इसका टेम्परेचर T1 था और इसके बाद में इसकी जो कुछ भी चेंजेस करने थे वो हमने कर डाले। सपोज वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, एक्सपांशन हो गया। अब इस टाइम पे भी अगर इसका टेम्परेचर T1 ही रहता है, वी आर नॉट अलाउइंग द टेम्परेचर टू चेंज, देन वी से दैट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। इसका मतलब व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? It will be zero because there is no change. The temperature is constant. Now, internal energy is one term that we will discuss further. But let me just tell you, internal energy मतलब होता क्या है कि कोई भी सिस्टम है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। से वाइब्रेशनल एनर्जी है, इनका काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सारे एनर्जीज का सम टोटल जो भी होगा, that is called as internal energy of the system. So internal energy of the system is the sum total of all forms of energies associated with the system. So ये internal energy depends upon the temperature.
अब जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? नो. सो देयरफॉर internal energy of the system also remains constant. So change in internal energy, we will represent this by U. Delta is for change, U is for internal energy. So delta U will also be 0. अब ये समझना जरूरी है कि इस प्रोसेस में द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिस्टम इज नॉट एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग. ओके, सिस्टम को सराउंडिंग के साथ में टेम्परेचर एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, तभी इसका हीट एक्सचेंज करना जरूरी है, तभी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है. से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है. अब हम इस गैस को अगर कंप्रेस करेंगे, व्हाट विल हैपन? कोलिजन्स बढ़ेंगे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कुछ भी है, क्योंकि वो पास में आ रहे हैं. कोलिजन बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन? हीट विल इंक्रीज. अब इसका टेम्परेचर तो बढ़ना ही है. फिर नाउ वी वांट द टेम्परेचर टू रिमेन कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो भी एक्सेस हीट हो रही है उसको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे. सो जैसे ही इसने हीट एक्सचेंज किया सराउंडिंग के साथ, उसका टेम्परेचर फिर उतना ही रह पाएगा. So during isothermal process there is no change in the temperature of the system and also internal energy of the system, but the system can exchange heat with its surroundings. So this is an important thing for you to understand. Now the next type of system is isobaric process. Next type of process. Bar is something that is associated with what? Pressure. Iso, as you understand, is constant. Bar is associated with the process. So isobaric process is the process during which the pressure of the system remains constant. मतलब ये प्रोसेस एक कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट होगा. कैसे होगा? से सपोज हम लोग कोई रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, ये कंटेनर में हमने रिएक्टेंट ए डाला, रिएक्टेंट बी डाला, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं. तो इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज नॉट क्लोज्ड. क्लोज तो है नहीं. इसका मतलब इसका प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि अभी चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इसी का मतलब क्या है? दिस प्रोसेस इज गेटिंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर. सो प्रेशर remains constant during this process. So therefore, what is the change in pressure? 0. So during this process, delta P is equal to 0. Of course, बाकी की चीजें change हो सकती हैं. So this is isobaric process. The next process is isochoric process. I hope you understand it already. Iso, you understand, is constant. Choric is something that is associated with the volume. So isochoric process is the process during which the volume remains constant. The process during which there is no change in the volume of the system is called as isochoric process. So therefore delta V क्या होगा अभी इस बार? Delta V will be equal to 0. Why? Because there is no change in the volume. ओके. नाउ एक इस टाइप का प्रोसेसेस हो सकते हैं. सपोज एक क्लोज कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने दो रिएक्टेंट्स डाल दिए, ए एंड बी, एंड दे आर रिएक्टिंग. नाउ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम. सपोज ए एंड बी आर गैसेस, तो ए ने भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, बी ने भी पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया. अब रिएक्शन कुछ भी होगी तो भी द वॉल्यूम विल नॉट चेंज. ओके, देयरफॉर वी से दैट द प्रोसेस is isochoric process. That is, there is no change in the volume during the process. Okay, so I hope you have understood these three processes: isothermal, isobaric, and isochoric. Now the next one is adiabatic process. This is very important. ये टर्म समझना जरूरी है क्योंकि बार बार हम लोग इसके बाद आइसोथर्मल, एडियाबैटिक ये टर्म्स यूज करते चलेंगे. फोर्थ प्रोसेस इज adiabatic process. See, adiabatic process क्या होती है कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोसेस के दौरान
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा. सो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस. इसका मतलब क्या है कि सिस्टम को हमने क्या करके रख दिया है, इंसुलेट करके रख दिया, आइसोलेट करके रख दिया फ्रॉम द सराउंडिंग. सो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देर इज no exchange of heat between the system and the surrounding is called as adiabatic process. अब heat को हम लोग Q से represent करते हैं. So Q will be equal to what? 0. Q और delta Q. Okay, heat. जब भी हम लोग heat बोलेंगे thermodynamics में, you understand that this is change in the heat. जब भी हम लोग temperature बोलेंगे, you understand that there is temperature. Because as I have discussed in the last lecture, thermodynamics में absolute values का कोई अहमियत नहीं है. In thermodynamics there is no importance of absolute values. What is important is change in the values. So therefore जो भी हम लोग functions use करेंगे, properties use करेंगे, you understand that what we are considering is change in those properties or change in those functions. So adiabatic process में there is no exchange of heat between the system and the surrounding. Of course the temperatures will change. Say for example हमने last इसमें देखा था, suppose ये एक कंटेनर है, इसमें गैस डाली है हमने, इसको हम लोग अगर कंप्रेस करते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस होता चला जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग वर्क ऑन दिस गैस. सो इसका हीट या इसका एनर्जी तो बढ़ेगा, लेकिन वी आर नॉट अलाउिंग इट टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग. सपोज वी आर नॉट अलाउिंग एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ना ही है एज वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम. सो इस प्रोसेस में अदर थिंग्स में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, बट व्हाट वी आर नॉट अलाउिंग इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. सो I hope you have understood this adiabatic process. Next thing that we will learn is irreversible process. नया टेक्स्ट बुक्स प्रिंट हुआ है स्टेट बोर्ड का. नया टेक्स्ट बुक्स में आई डोंट नो, शायद गलती से रह गया, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्सप्लेन किया ही नहीं है और डायरेक्टली रिवर्सिबल दिया है, और इरिवर्सिबल कहीं दिया हुआ ही नहीं है. सो दैट वे देयर इज लाइकली टू बी सम कंफ्यूजन. इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ देखिए, किसी भी प्रोसेस में थर्मोडायनामिक्स में देयर विल बी टू फोर्सेस. एक तो होगा ड्राइविंग फोर्स और दूसरा होगा अपोजिंग फोर्स. नाउ व्हाट आर दीज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. Suppose this is gas. Some amount of gas is kept in a cylinder. This cylinder is fitted with this piston. This piston is movable, frictionless but movable. अब इसका जो भी प्रेशर होगा, this is P, ये क्या करेगा, ये प्रेशर इसके ऊपर एक्ट करेगा. एट द सेम टाइम ऊपर से एक्ट होगा कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर. So therefore अगर एक्सपांड करना है, so this is the driving force, driving pressure, और ये क्या होगा, opposing pressure. So these two pressures or two forces are important to understanding this, driving force or driving pressure and opposing pressure. Now driving pressure और opposing pressure में अगर significant difference है, large difference है, तो क्या होगा. अगर ये प्रेशर कम है, ये प्रेशर ज्यादा है, तो what will happen, ये simply एक्सपांड होते चला जाएगा. ओके, सो एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्टेप में ये प्रोसेस पूरी होगी. सो इफ देर इज लार्ज और सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स, देन द प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली. Such a process is called as irreversible process. So irreversible process is that process in which there is significant difference between the driving force and the opposing force, and therefore the process takes place in a single direction. Such a process is called as irreversible process. It is easy now to understand what is reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स जो है और अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग प्रेशर जो है,
इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग प्रेशर एंड द अपोजिंग प्रेशर इज इनफाइनेटिसिमल, मतलब बहुत कम डिफरेंस है. तो इससे क्या होगा, अगर ये प्रेशर कम है, P एक्सटर्नल इज लेसर देन P, दैट इज द इंटरनल प्रेशर, तो व्हाट विल हैपन, एक्सपांशन विल टेक प्लेस. बट ये बहुत ज्यादा कम नहीं है इससे, सो क्या हो जाएगा, ये एक्सपांड हो जाएगा तो इसका प्रेशर कम होता चला जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड. सो नाउ बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन इट्स प्रेशर विल डिक्रीज. तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, दोनों प्रेशर्स इक्वल हो जाएंगे. अब उसके बाद will the expansion take place? No, the expansion will not take place. Expansion will take place as long as there is difference between the driving pressure and the opposing pressure. So अब क्या हो जाएगा, there is mechanical equilibrium. मतलब क्या है, अंदर का प्रेशर और बाहर का, that is driving pressure and opposing pressure, they become equal. So there is no further expansion or compression. So the process stops. फिर हमको प्रोसेस आगे ड्राइव करना है, हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को और थोड़ा कम कर देंगे. व्हाट विल हैपन, फिर एक बार ये कम है, ये ज्यादा है, फिर से थोड़ा एक्सपांशन हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, फिर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. क्या हो रहा है ये, द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स. इस टाइप का जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस. So reversible process में there is infinitesimal or very small difference between the driving force and the opposing force, and therefore the process takes place in infinite steps, very large number of steps. अच्छा, दूसरा इसको रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, अब एक्सटर्नल प्रेशर कम है, ड्राइविंग प्रेशर ज्यादा है, इसलिए एक्सपांशन हो रहा है. अब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हल्का सा बढ़ा दे तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज मोर, दिस इज लेस. सो नाउ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस हैज रिवर्स्ड. अब तक एक्सपांशन हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द अपोजिंग प्रेशर. इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस. सो आई विल रिवाइज इट. See, in irreversible process there is a significant difference between the driving force and the opposing force, and therefore the process takes place irreversibly in the same direction. Whereas in case of reversible process there is infinitesimal difference between the driving force and the opposing force, and the direction of the process can be reversed by changing the opposing pressure. Reversible process takes place in large number of steps, infinite steps, whereas irreversible process takes place in a single step. So इसके आगे का जो भी डिस्कशन रहेगा that will revolve around these things only. Reversible process, irreversible process, isothermal process, adiabatic process. इसलिए ये बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है. I hope you have understood this. अगर समझने में डिफिकल्टीज आए तो you watch this video again. अगर इसके पहले के कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है ऐसा लग रहा है, यू वॉच द वीडियो बिफोर दिस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू. कीप वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.